सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अग्रिम और आप देख रहे हैं स्टडी विद अग्रिम का यूट्यूब चैनल। और गाइस, आज हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं उसी चैप्टर का। आपको पता ही होगा कौन सा चैप्टर। अरे यार, कौन सा तो मैं तो नाम चैप्टर 19 सिंपल मशीन्स। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। There are mainly three types of levers depending on the position of the fulcrum. Class 1. यहाँ पर 3 टाइप्स के लीवर्स होते हैं, डिपेंड होते हैं वो फल्क्रम की पोजीशन पे। पहली क्लास क्या है? 1. These levers have the fulcrum between the load and the effort. ये जो लीवर्स होते हैं, है ना, वो फल्क्रम, इनमें ना फल्क्रम जो है बीच में होता है और लोड और एफर्ट साइड साइड में होता है। ठीक है, फिर है क्लास 2। Class 2. These levers have the load between the effort and the fulcrum. इनका जो ये जो लीवर्स होते हैं, इनका जो लोड होता है ना, वो बीच में होता है किस किस के? एफर्ट के और फल्क्रम के। Class 3. These levers have the effort between the load and the fulcrum. ये जो लीवर्स होते हैं, इनका जो एफर्ट होता है वो लोड और फल्क्रम के बीच में होता है। तो ये 3 टाइप्स के लीवर्स होते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दे गए हैं। Wheel and axle. व्हील और एक्सल। The wheel is one of the most important inventions of man. No one is really sure where the wheel was invented, but imagine your life without any vehicles and all other wonderful machines around you. जो व्हील है, एक बहुत इम्पोर्टेंट इन्वेंशन है मैन का। कोई श्योर नहीं है कहाँ पर व्हील बना था, लेकिन इमेजिन योर लाइफ। आप इमेजिन करिए कि अगर कोई व्हीकल ना हो या फिर वंडरफुल मशीन्स ना हो आपके अगल बगल, अराउंड अस, हर जगह, तो The wheel is not a machine by itself. It becomes a machine when a rod called axle is attached to it. एक व्हील एक मशीन नहीं है, खुद से एक मशीन नहीं है, लेकिन वो जब मशीन कब बनता है? जब वो एक रॉड होती है, एक्सल कहा जाता है उसको, उससे अटैच होता है। Together, the wheel and the axle make a simple machine. आज टुगेदर मतलब एक साथ व्हील और एक्सल जो है एक सिंपल मशीन बनाते हैं। You can see such an arrangement in cars, sewing machines, egg beaters, bicycles, the potter's wheel, etc. आप जो है यहाँ पर जो है कुछ अरेंजमेंट देख सकते हैं कार्स में, स्विंग मशीन्स में, एग बीटर्स में, बाइसाइकिल्स में और पॉटर्स व्हील, और भी बहुत सही है। Pulley. A pulley comprises of a wheel and a rope. You must have seen women drawing water from the wells. They use 2 मिनट यहाँ पर देखना। ये हमने देखा था क्या? हाँ, देख लिया होगा। चलिए, नहीं, Can you think of हाँ, चलिए पुले पढ़ते हैं हम। pulley? A pulley comprises of a wheel and a rope. You must have seen women drawing water from the wells. They use a pulley for this purpose. ये जो पुली होती है वो एक व्हील और रोप की होती है। आपने देखा होगा वुमेन्स को वो वाटर ला रही है वेल से, वो पुले को यूज करते हैं इस पर के लिए। The wheel in the pulley has a grooved track for the rope to move through it. जो व्हील होता है पुले में, उसके पास एक ग्रूव्ड ट्रैक होता है रोप को मूव करने के लिए।
A pulley works by changing the direction of effort applied to a more convenient one. आप ये समझ सकते हैं कि एक से एफर्ट लगा रहे हैं और उससे जो है वो आप एफर्ट लगाएंगे तो वो भी मूव कर रहा है. Pull down. Thus, a pulley is used extensively to do twice as much work with the same effort. एक्सटेंसिवली वो यूज कर जाते हैं दो एज मच वर्क, है ना, सेम एफर्ट के साथ. Pulleys are also used in the sailboats for raising and lowering a sail. A जो सेल बोट्स में भी यूज करी जाती है रेस करने के लिए, लोअर और लोअर करने के लिए सेल को. flag is raised on a flat pole with a pulley. फ्लैग जो है रेस होता है और एक फ्लैग पोल पर पुली से. तो यहाँ पर फोटोज हैं, नहीं वीडियो. Pulley. A pulley comprises of a wheel and a rope. You must have seen women drawing water from the wells. They use a pulley for this purpose. The wheel in the pulley has a grooved track for the rope to move through it. A pulley works by changing the direction of effort applied to a more convenient one. Therefore, effort is applied in one direction and load is moved in another direction. It is much easier to pull down than to pull up a load, as your own body weight can be used to help pull down. Thus, a pulley is used extensively to do twice as much work with the same effort. Pulleys are also used in the sailboats for raising and lowering a sail. A flag is raised on a flat pole with a pulley. आपने सुन ही लिया होगा जैसे कि, है ना. फिर आता है इंक्लाइंड प्लेन. Inclined plane. The inclined plane makes work easier. It is a slope, such as the plane. Can you tell how an inclined plane works? It is much easier than dragging it on a flat. पहले आपको मीनिंग समझा देता हूँ पूरे का ही. इंक्लाइंड प्लेन जो होता है इजी करता है वर्क को. एक स्लोप होता है, ठीक है, जैसे कि ये रहा एक स्लोप, ये है इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, एक हिल की साइड जैसा. वो नेचुरल है इंक्लाइंड प्लेन, है ना. कैन यू टेल इंक्लाइंड प्लेन कैसे वर्क करता है? इट इज मच इजियर, बहुत इजियर है रोल करने के लिए ऑब्जेक्ट्स को ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन. इंक्लाइंड प्लेन पर रोल करना बहुत आसान हो जाता है देन ड्रैगिंग इट ऑन फ्लैट सरफेस और सिंपली कैरिंग द ऑब्जेक्ट बाय पुलिंग इट, है ना. हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड वर्कर्स लोडिंग ड्रम्स इन अ ट्रक? Flat surface or simply carrying the object by pulling it. Have you ever observed workers loading drums in a truck? फिर यहाँ पर हम An inclined plane or a ramp against the truck help the workers to load the drums easily. Thus, a ramp or a slope is a simple machine. एक इंक्लाइंड प्लेन या फिर रैम्प अगेंस्ट अ ट्रक जो है हेल्प करता है वर्कर्स को लोड करने के लिए ड्रम्स को बहुत आसानी से. इसलिए इस रैम्प या फिर स्लोप को ये एक सिंपल मशीन है. Wedge. Wedge is a triangular simple machine having two back-to-back inclined planes. वेज एक ट्रायंगुलर सिंपल मशीन है. दो बैक होते हैं, इंक्लाइन प्लेन्स होते हैं बैक टू बैक, है ना. वेज Wedge can be used to separate two objects or portions of an object. वेज जो है यूज किया जाता है किसी लकड़ी के टुकड़े को दो पार्ट्स में सेपरेट करने के लिए, Lift up an object or hold an object in place. या फिर होल्ड करने के लिए एक ऑब्जेक्ट को, है ना, एक प्लेस में. Wedges, like other simple machines, are very useful. Knife, scissors, and axe are some wedges which are used in everyday life for separating things. Pins and nails are those.
wedges which are used to hold things together. हाँ, नाइफ, सीजर्स और एक्स, है ना, कुछ वेजेस हैं जो यूज किए जाते हैं एवरीडे लाइफ में और सेपरेट करने के लिए थिंग्स को। पिंस और नेल्स वो वेजेस हैं यूज करे जाते हैं थिंग्स को होल्ड करने के लिए टुगेदर, ठीक है। Can you imagine your mother's plight if there were no knives? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं आपकी मम्मी के पास प्लाइट कर जाए वो क्योंकि यहाँ पर नाइफ्स ही ना हो। Screw. A screw is yet another simple machine which is more effective than a nail as it holds things together much better. एक स्क्रू जो होता है एक और सिंपल मशीन है, बहुत इफेक्टिव है नेल से, ये थिंग्स को होल्ड करता है टुगेदर बहुत बेटर तरीके से। You cannot pull a screw out of a piece of wood as you can pull out a nail. आप जो है एक स्क्रू को निकाल नहीं सकते एक पीस से वुड के, लेकिन आप नेल को निकाल सकते हैं। This is because a screw is actually an inclined plane that goes round and round. क्योंकि ये है एक स्क्रू जो है एक एक्चुअली एक इंक्लाइन प्लेन है जो राउंड और राउंड जब जाएगा तब आप जो है वो डल जाएगा ऐसे। Thus, it holds things together through a longer distance with a stronger grip. है ना, तो इसलिए यहाँ पर होल्ड करी जाती, ये होल्ड करता है थिंग्स को टुगेदर एक लॉन्गर डिस्टेंस, है ना, एक स्ट्रॉन्गर ग्रिप के साथ। We use screws to do many jobs. Bolts are used to put together many small parts of complex machines, revolving stools, bases of most light bulbs. Even your pen caps have screws. हम स्क्रूज को यूज करते हैं बहुत सारी जॉब्स को करने के लिए, है ना। बोल्ट्स जो है यूज किए जाते हैं टुगेदर, पुट टुगेदर मैनी स्मॉल पार्ट्स जो है उनको टुगेदर जो है, जैसे कि एक कॉम्प्लेक्स मशीन के रिवॉल्विंग स्टूल, bases of most light bulbs, even your pen cap have screws। आपके पेन कैप में भी स्क्रूज होते हैं। तो guys, इस वीडियो के लिए इतना ही, ये चैप्टर भी खत्म हो गया। लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।